Hello everyone, this is Tanu Agarwal welcoming you all at your very own YouTube channel Let's Learn. Today we are going to discuss 1 mark and short answer questions in the revision series. So we are going to have a quick revision of different 1 mark and short answer questions which are possible out of chapter 1. What is economic activity? अब economic activity क्या होता है? Human activities which are performed in exchange for money or money's worth are called economic activity. ऐसी activities जो money के लिए या money's worth यानी कि money की form में कोई भी और चीज हमें return में मिल रही है उसके लिए करते हैं, उसको economic activity कहते हैं. Name 3 types of economic activities. Economic activities are classified into 3 categories: business, profession and employment. What is business? Business क्या होता है? Business refers to an occupation. Business एक occupation होता है जिसमें people are regularly engaged. ऐसी activities जिसमें people regularly engaged होते हैं, क्योंकि जो activities हम कभी कभी करते हैं उनको business में consider नहीं करेंगे. The activities which are done on regular basis are considered to be the business. So business refers to an occupation in which people are regularly engaged in activities related to purchase. अब उसमें हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट. और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी की एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए. अभी हमने डिस्कस करा बिजनेस एक्टिविटीज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इट इज डन ऑन रेगुलरली बेसिस, इट इज डन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इन्वॉल्व परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व रिस्क, इट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी. ये सब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है. दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज डन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. नाउ मेंशन द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी की 2 ब्रॉड कैटेगरीज बताइए. बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. नेम 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 टाइप बताने हैं. वी नो दैट प्राइमरी इंडस्ट्री इज द वन which is related to extraction of natural resources. तो natural resources जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं. एक तो extractive industry होती है और genetic industry होती है. Extractive industry क्या होती है? Which is related to extraction of natural resources, and genetic industry is the one which deal in livestock. Name 2 types of secondary industry. सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स बताने हैं. वी नो दैट सेकेंडरी इंडस्ट्री इज द वन विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जो मैन्युफैक्चर करती है चीजों को, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच कंस्ट्रक्ट द रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा. गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स थे उसके एग्जांपल बताने हैं हमें. माइनिंग, बिकॉज माइनिंग इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Give an example of genetic industry. Genetic industry का एक example देना है. We have discussed that genetic industry is a type of primary industry. This is related to rearing and breeding of livestock. So poultry farming, it means rearing and breeding of hens. Give an example for manufacturing industry. Manufacturing industry का example दीजिए. और manufacturing industry किसके types में आती है? Secondary industry के. Sugar industry because it is related to manufacturing of sugar. Give an example of construction industry. This is also a type of secondary industry. Construction of dams, ऐसी construction of buildings, roads सब इसमें आएगा. What is trade? Trade क्या होता है? Buying and selling of goods and services is called trade. गुड्स को और सर्विसेज को बाय करना और उन्हें सेल करना ट्रेड कहलाता है. What do you mean by auxiliaries to trade? Auxiliaries to trade क्या होता है? Which provide the support services to trade. So the activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. ऐसी activities जो ट्रेड को असिस्ट करती हैं, ट्रेड को हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल warehousing, transportation, communication, advertisement, etc. Mention any one objective of business. As we know that business have 3 objectives. एक ऑब्जेक्टिव हमें मेंशन करना है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. गिव एन एग्जांपल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री का एक एग्जांपल. सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शरी इंडस्ट्री. इसी का दूसरा नाम होता है सर्विस इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विसेज. सो एक एग्जांपल देना है ट्रांसपोर्ट. व्हाट डू यू मीन बाय हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड? हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ट्रेड में आने वाली रुकावटें. तो ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स that businessman faces for conducting business. बिजनेस को कंडक्ट करने में जो जो रुकावटें आती हैं, जो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो बिजनेसमैन फेस करता है और ट्रेड एक्टिविटीज या ट्रेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में, these are known as hindrance of trade.
स्टेट एनी वन टाइप ऑफ हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड। अब हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड का एक एग्जांपल दीजिए, एक टाइप बताइए। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट। स्टेट एनी वन टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, एक बिजनेस रिस्क का एग्जांपल देना है हमें, तो नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क आर दोज व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल कॉजेस लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट एटसेट्रा। What is mean by non-economic activity? Non-economic activity क्या होती है? Which are not related to earning profit. Activities which are performed out of love, care, sympathy, patriotism, etc. are known as non-economic activities. Give an example for non-economic activity. अब एक example देना है. A teacher teaching his own son at home is known as non-economic activity because this activity he is performing out of love, out of care. If a teacher is teaching at school and getting the salary in return, then it will be considered as economic activity. Give an example of profession. Profession का एक example देना है, तो lawyer, ऐसी बहुत सारे example हो सकते हैं, डॉक्टर, CA, CS, ये सब profession में आएंगे. Give an example for analytical industry. Crude oil processed. अब analytical industry क्या होती है? The industry which convert a single raw material into many finished goods. तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल प्रोसेस जब होता है तो उसको सेपरेट किया जाता है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि पेट्रोल बनता है उससे, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा। गिव एन एग्जाम्पल फॉर सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल दीजिए। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि मिक्सचर से दो या दो से ज्यादा चीजों के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। तो सीमेंट, सीमेंट कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग कॉन्क्रीट एंड कोल एटसेट्रा। सीमेंट में कॉन्क्रीट, कोल, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं तब सीमेंट बनता है। So this is an example of synthetic industry. Give an example for processing industry. Steel and textile. Processing industry is the one which process the raw material by through different techniques for producing the finished goods. Give an example for assembly industry. Manufacturing vehicles. अब assembly industry क्या होती है? The industry which assembles the different parts of the product and manufacture a finished product. तो vehicle जो होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हम व्हीकल को सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो अलग अलग पार्ट्स जो उसके होते हैं उसको भी हम सेल आउट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स यानी कि व्हीकल जो है वो असेंबली इंडस्ट्री में आएगा। What are the different types of economic activities? Economic activities are classified into three types: profession, business and employment. नेम वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। के इकोनॉमिक एक्टिविटी बताइए इन विच एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। अब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी नो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो इन सब में से एक पार्टिकुलर एक्सपर्टीज किस में चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज किस में चाहिए होती है, दैट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज। नेम द इंडस्ट्रीज दैट फर्निश सपोर्ट टू अदर फेलो इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्री बताइए जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो दूसरी फेलो इंडस्ट्री जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसको। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज फर्निशिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। कैन फिशिंग बी कंटेम्पलेटेड एज प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के कौन कौन से टाइप्स होते थे हमने अभी डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। So the primary industry is basically classified into two types, that is extractive and genetic. तो extractive में तो आ गई जैसे माइनिंग। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती है जैसे फिशिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। तो जो फिशिंग है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ सकती है, प्राइमरी इंडस्ट्री की जेनेटिक कैटेगरी में। सॉर्ट द फॉलोइंग इनटू अ बिजनेस कंसर्न, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन। अब ये कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, इसको हमें प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर करना है। तो फार्मर, फार्मर क्या है? बिजनेस। क्लर्क, दिस इज एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ही इज एम्प्लॉयड अंडर समबडी। लॉयर, इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है तो ये प्रोफेशन हो गया। और डॉक्टर, इसके लिए भी स्पेशलाइज सेट ऑफ नॉलेज चाहिए होता है तो ये भी प्रोफेशन। व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट अ बिजनेसमैन अर्न्स। ऐसा क्या रिवॉर्ड है जो बिजनेसमैन को मिलता है फॉर बेयरिंग द रिस्क, रिस्क लेने के बदले में। तो बिजनेसमैन, when a businessman bears the risk, जब बिजनेसमैन रिस्क को बेयर करता है, the reward that he will get is the profit. Profit is the reward for bearing the risk. What is the difference between business and profession? Business और profession में क्या difference होता है? Business में जो capital चाहिए होती है वो huge amount of capital चाहिए होती है और business के size और nature पर depend करती है। और profession में जो capital चाहिए होती है वो limited होती है।
प्रोफेशन को वन टाइम इस्टेब्लिश करने के लिए बस कैपिटल चाहिए होती है, उसके बाद फर्दर उसमें इतनी ज्यादा कैपिटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि बिजनेस में आपको रेगुलरली कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। मिस्टर पीयूष sold his washing machine and refrigerator on Quaker as he was shifting waste to London. Is this a business activity? No. This cannot be considered as business activity because it must have regularity characteristic of business, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है। पीयूष रोज रोज तो अपना सामान क्विकर पर बेचेंगे नहीं, उन्हें जब वन टाइम शिफ्ट करना था टू द लंदन, तब उन्होंने अपना सामान, ये जो वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर है, वो क्विकर पर सेल किया। बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जो काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो उसको बिजनेस कंसीडर करेंगे। अब जो काम आप रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे हो, जिन गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर डील नहीं कर रहे हो, उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। इंश्योरेंस इज नोन एज टर्शियरी इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। इंश्योरेंस को टर्शियरी इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंश्योरेंस एक सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करता है टू द अदर इंडस्ट्रीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। What is primary industry? Primary industries are concerned with the extraction and manufacturing of natural resources. Primary industry extraction और manufacturing से concern होती है of the natural resources. ये raw material और natural resources में deal करती है। These industries manufacture raw material. ये raw material को manufacture करती हैं to produce the finished commodities for utilization purpose. अब जब प्राइमरी इंडस्ट्री जो है ना, वो रॉ मटेरियल से डील करती है और फिर वो रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देती है टू कन्वर्ट इट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। तो फाइनल यूटिलाइजेशन के लिए जो कमोडिटीज प्रोड्यूस करी जाती हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा जाता है, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री में हम बनाते हैं, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट करा जाता है। क्लासिफाइड एज फॉलोज। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, while genetic is related to rearing and breeding of livestocks.